وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جاہ کا میاں والی کا دورہ، جہاں انہوں نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا اور حالات کا جائزہ بھی لیا۔ عصمت اللہ نیازی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جاہ نے اپنے میاں والی دورہ کے دوران ڈسٹرکٹ بار میں آگاہی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ادارہ کے قیام کا مقصد ٹیکس ادا کرنے والے شہریوں کے حقوق کا تحفظ اور ان کی شکایات کا ازالہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ٹیکس پیئر کو اگر ایف بی آر کی طرف سے کسی قسم کا غیر قانونی نوٹس آتا ہے یا اسے بے جا ہراس کیا جاتا ہے تو وہ ایک سادہ کاغذ پر ایف بی آر کے متعلقہ مجاز اتھارٹی کے خلاف درخواست ہمارے آفس میں جمع کروائے۔ اس کی درخواست پر بلا معاوضہ کارروائی ہوگی اور اسے انصاف فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال ان کے ادارے کو 8000 درخواستیں موصول ہوئیں جن کے فیصلے بھی کیے، جبکہ ان کے 356 فیصلوں کے خلاف صدر پاکستان کو درخواستیں دی گئیں، جن میں سے 346 فیصلے برقرار رکھے گئے، جو کہ وفاقی ٹیکس محتسب کی مثالی کارکردگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ وفاقی محتسب ڈاکٹر آصف محمود جاہ نے میاں والی میں وفاقی ٹیکس محتسب کے ریجنل آفس کا افتتاح بھی کیا۔ بعد ازاں وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میاں والی بھی گئے اور وہاں پر موجود مریضوں سے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ عصمت اللہ نیازی، اسپیشل نیوز، میاں والی۔ اوکاڑا یونیورسٹی کے شعبہ باٹنی کی جانب سے پلانٹ سائنسز اور قدرتی مصنوعات کے موضوع پر دوسری سالانہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ 2 روزہ کانفرنس میں 25 سے زائد ملکی اور غیر ملکی جامعات کے محققین اور اسکالرز نے شرکت کی۔ بیورو چیف کاشف ندیم چودھری کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ کانفرنس میں دنیا کی صف اول کی جامعات سے منسلک سائنسدانوں نے پلانٹ سائنسز میں تحقیق کے جدید رجحانات اور نئے نظریات پر خصوصی لیکچرز دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ 40 محققین نے اپنے مقالہ جات پیش کیے۔ کانفرنس کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اختر نے کی، جبکہ شعبہ باٹنی کے سربراہ ڈاکٹر فہیم ارشد، ڈاکٹر نائلہ مختار نے بطور سیکرٹری، جبکہ ڈاکٹر ندا نے فوکل پرسن کے فرائض سر انجام دیے۔ ڈاکٹر بینش خالق اور سمن امین نے کانفرنس کی میزبانی کی۔ کانفرنس میں پیش کردہ مقالہ جات کی ٹیکنیکل ریویو کمیٹی میں ڈاکٹر سیدہ انجم طاہرہ، ڈاکٹر محمد اقبال اور ڈاکٹر شفیق الرحمان شامل تھے۔ کانفرنس میں شرکت کرنے والے بین الاقوامی سائنسدانوں میں مکہ سے پروفیسر ڈاکٹر محمد فازے، ترکی سے پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود، پولینڈ سے پروفیسر ڈاکٹر میرپوز اور ڈاکٹر کٹزائنا، امریکہ سے ڈاکٹر محمد عدنان اور جاپان سے ڈاکٹر محمد وسیم شامل تھے۔ ڈاکٹر وسیم کے علاوہ باقی سب غیر ملکی محققین نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ پاکستان کی مختلف جامعات سے کانفرنس میں شریک سائنسدانوں میں پنجاب یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر ارشد جاوید اور پروفیسر ڈاکٹر تہمینہ انجم، یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز سے پروفیسر ڈاکٹر اویس عمر، غازی یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر ندیم اختر، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر عامر نواز اور پروفیسر ڈاکٹر احمد اکرم، سرگودا یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر عامر علی، ایجوکیشن یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر ابرار حسین اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے پروفیسر ڈاکٹر رضوان رشید شامل تھے۔ کانفرنس کے معاونین میں پیسٹک، پاکستان سائنس فاؤنڈیشن، عرفان فارما اور ریس ٹیکنالوجیز شامل تھے۔ کانفرنس میں پلانٹ سائنسز کے مختلف پہلوؤں، پلانٹ فزیالوجی، ٹیکسانومی اور دیگر موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ شرکاء کے درمیان رسمی اور غیر رسمی مکالمات کے کئی سیشن ہوئے، جس سے ملکی اور غیر ملکی محققین کو ایک دوسرے کی تحقیق سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ اس کانفرنس میں شعبہ باٹنی کے طلباء کی جانب سے تحقیق کے نتیجے میں تیار کی جانے والی قدرتی مصنوعات کی نمائش بھی لگائی گئی۔ 50 سٹالز پر مبنی اس نمائش میں کاسمیٹکس، ہینڈی کرافٹس اور دیگر ہربل مصنوعات شامل تھیں۔ ڈی پی او بہاولپور سید محمد عباس شاہ نے سید احمد مبین شہید پولیس ڈرائیونگ لائسنسنگ سینٹر کی نئی تعمیر شدہ جدید سہولیات سے آراستہ عمارت کا افتتاح کر دیا۔ بیورو چیف بہاولپور کاشف چودھری کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔
निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत के मुताबिक DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने सैयद अहमद मुबीन शहीद पुलिस ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर की नई तामीर शुदा जदीद सहूलियात से आरास्ता बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह के अहकामात पर DSP सदर सर्कल सैयद अजहर रजा गिलानी और उनकी टीम ने बहावलपुर के अवाम के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर का ख्वाब सच कर दिखाया। बहावलपुर के शहरी किसी भी दुश्वारी के बगैर पुरवकार माहौल में अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस करवा सकते हैं। SSP सोहबतपुर गुलाम हुसैन बाजोई का कहना है कि जिला भर में अमन व अमान को बरकरार रखना पहली तरजीह है। जिला भर के थानों की पुलिस चेक पोस्ट पर अमले की चेकिंग और दीगर मसाइल के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग का अमल जारी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जिना प्रेस क्लब सोहबतपुर में किया। इस मौका पर सब इंस्पेक्टर हबीबुल्ला खोकर, चौकी इंचार्ज मांझीपुर, सब इंस्पेक्टर गुलाम रसूल शेख और दीगर भी उनके हमरा थे। इस हवाले से SSP सोहबतपुर का क्या कहना था, आइए देखते हैं। आप लोगों ने भी देखा कि 8 फरवरी को जो हमारा इलेक्शन डे था उसमें हमारे टोटल ज़िले में 112 पोलिंग स्टेशन थे। तमाम पे हमने बेहतरीन तरीके से डिप्लॉयमेंट की हुई थी, अपने जवान अलर्ट किए हुए थे, रात को आकर इधर रहे थे। उसके अलावा हमने हर जगह BD टीम मंगवा के वो तमाम स्कूल वगैरह जो डिस्पेंसरी थे, जो भी पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर हुए थे, उनकी स्वीपिंग सर्चिंग कराई। और साथ साथ हमने BC, ATF, FC के साथ राब्ते में थे। FC के जवान जो इंतहाई हसास हमारे पोलिंग स्टेशन थे डिप्लॉय थे। आप लोगों ने भी नोट किया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ज़िले में अमन अमान से सोहबतपुर में जो है ना पोलिंग खैर खैरियत से हो गया। कोई इक्का दुक्का कोई छोटे मोटे जो हो जाते हैं, कोई एक मेरे ख्याल में केस हुआ था हल्का चतन में, बाकी ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पीसफुल और बड़े अच्छे तरीके से कोई पोलिंग स्टाफ नहीं हुआ। पूरे सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक पोलिंग जारी रही और अच्छे तरीके से एहसन तरीके से गुजरा माशाल्लाह। सजावल में पुलिस की खराब कारकर्दगी और जराइम की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए, महाफिजों के दर पर धरना दे दिया। इमदाद पठान की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। सजावल में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए और महाफिजों के दर पर धरना दिया। जिला सजावल में बदअमनी और बढ़ती हुई स्ट्रीट वारदातों के खिलाफ मुजाहिरीन ने SSP ऑफिस सजावल के सामने शदीद नारेबाजी भी की। सियासी और समाजी हलकों का कहना है कि जिला सजावल में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है, जबकि पुलिस ख्वाब खरगोश की नींद में मगन है। एहतजाज में शरीक अफराद का कहना था कि डकैती और चोरी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिससे शहरी खौफ व हरास में मुब्तला हैं। रवां हफ्ते के दौरान लोगों के रास्ते गैर महफूज हो चुके हैं। जिला सजावल के सियासी और समाजी हलकों ने IG सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हासिलपुर में थाना सिटी की हुदूद बिहारी कॉलोनी में सुपर स्टोर पर डकैती की वारदात। दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 8 साला बच्चा जख्मी हो गया, जबकि 3 डाकू सुपर स्टोर्स के मालिक से 1.5 लाख रुपए लूट कर फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। छांगा मांगा में कोट राधा किशन रोड पर ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाम बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। फैक्ट्री मुलाजमीन को लेकर जाने वाली तेज रफ्तार कोस्टर ओवरटेक करते हुए मुखालिफ समत से आने वाले ट्रैक्टर से टकरा गई, जबकि पीछे से आने वाला मोटरसाइकिल सवार ट्रैक्टर से टकराने के बाद शदीद जख्मी हो गया और जाम बहक हो गया। रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की और शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चूनिया में जेर हिरासत मुलजिम पुलिस तशद्दुद से हलाक हो गया। थाना सदर पुलिस ने नौजवान सईद मकबूल को एक साथी समेत मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। डिस्ट्रिक्ट कसूर रिपोर्टर असलम बाबर अंसारी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। चूनिया में जेर हिरासत मुलजिम पुलिस तशद्दुद से हलाक हो गया। थाना सदर पुलिस की हवालात में बंद रोसा टिब्बा का रिहायशी नौजवान सईद हवालात में दम तोड़ गया। थाना सदर पुलिस ने नौजवान सईद मकबूल को एक साथी समेत मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। पुलिस थाना सदर ने एक मुलजिम को पैसे लेकर छोड़ दिया, जबकि सईद नामी नौजवान को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाकर मार डाला। वो रसा का इल्जाम
पुलिस का कहना है कि नौजवान की हलाकत हवालात में मुबैना तौर पर तशद्दुद से हुई या तबई तौर पर मौत वाक़ हुई। असल हक़ाइक़ पोस्टमार्टम के बाद सामने आएंगे। वरसा का कहना है कि आईजी पंजाब और आरपीओ शेखुपुरा रेंज नोटिस लेकर मामले की इंक्वायरी करवाएं। वरसा ने पुलिस थाना सदर के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब झंग के सालाना इंतखाबात के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने प्रेस क्लब जबकि डीपीओ ने यूनियन के ओहदेदारान से हल्फ लिया। झंग से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान गुल। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब झंग के सालाना इंतखाबात में प्रेस क्लब और यूनियन के नए मुंतखब होने वाले ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद हुई। मार नवीज सधाना डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर और डॉक्टर रियाज नोल जनरल सेक्रेटरी, जबकि डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर वहीद अहमद मल्लक और चौधरी इमरान गुल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की 9 मुंतखब बॉडी, जबकि डीपीओ राशिद हदायत ने डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बॉडी से हल्फ लिया। इंतजामिया की जानब से मुकम्मल तावन की यकीन दहानी भी करवाई गई। कोई भी ऑप्शंस हो को गवर्नमेंट की आप समझते हैं किसी जगह पे प्रेस क्लब बन सकता है, कोई भी मुझे ऑप्शन दे इंशाल्लाह मैं उसको ओपनली, क्योंकि आपको पता है कि रूल्स रेगुलेशन के अंदर रहते हुए कोई आप जो है उसको इस्तेमाल करके हुए दोस्तों को जो है अकोमोडेट कर सकते हैं। आए हम सब मिलकर वादा करते हैं कि एक झांग में एक अच्छी सोसाइटी की तश्कील के लिए, एक पुरअमन माशरे की तश्कील के लिए, क्राइम फ्री सोसाइटी के क़याम के लिए मौसर तरीके से हम अपनी अपनी जगह पे अपना मुसलमान जो रोल है वो प्ले करें। प्रेस क्लब और यूनियन के सदर और जनरल सेक्रेटरी भी सहाफ़ियों की फलाह के लिए काम करने के दावे करते नजर आए और तमाम भाइयों ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये भी होगी कि सहाफ़ी भाइयों के जो भी इनके इश्यूज़ हों उनके हल के लिए जितना हो सका कोशिश करेंगे, उनका मसाइल का हल निकालेंगे। मैं बतौर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब झंग ये ऐद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और सहाफ़ियों भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनको भी दूर करेंगे। बतौर सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मुंतखब हूँ, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं तीसरी बार डिस्ट्रिक्ट प्रेस सदर बना हूँ और हमेशा सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए काम किया है और सहाफ़ियों को जो भी मसाइल हो उसको पहले रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के जो आइनी मसाइल होंगे या उनके बिल्डिंग के मसाइल हैं या दूसरे मसाइल हैं, ये सब हम अपनी क़यादत के साथ मिलकर इसको हल करने की कोशिश करेंगे और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के तमाम सहाफ़ियों के हकूक़ की जंग को हम बाकायदा सर फहरे से पहले कदम पर लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जंग के सहाफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए जो काम हमसे हो पाया हम उसे बिल्कुल पुरअज़म तरीके से हम इसको करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर प्रेस क्लब की जानिब से मेहमानों में एजाज़ी शील्ड्स भी तकसीम की गई। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, झंग। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है कि रीजन भर में इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जारी है। बिजली चोरों और उनके सहूलतकारों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। लाहौर से मियां यासिर की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से इंसदादे बिजली चोरी मुहिम को 162 रोज मुकम्मल हो गए। इस दौरान 17,612 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मजमूई तौर पर 55,807 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 51,367 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। बिजली चोरों को अब तक 7,50,43,637 यूनिट्स चार्ज किए गए। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि चार्ज किए गए यूनिट्स की कीमत 2,87,75,53,123 रुपए बनती है, जबकि 24 घंटों में 438 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 146 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 21 कमर्शियल, 2 ज़रई, 1 इंडस्ट्रियल और 414 डोमेस्टिक थे। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके 3,33,789 यूनिट्स डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि 24 घंटों के दौरान चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 1,15,48,815 रुपए बनती है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है कि इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जारी रहेगी। और फलों में स्ट्रॉबेरी एक अपना खास मकाम रखती है। खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी ने बाजारों की रौनक को दोबाला कर दिया है। स्ट्रॉबेरी विटामिन से भरपूर एक ऐसा फल है जिसको बच्चे और बड़े सभी शौक से खाते हैं। स्ट्रॉबेरी के तैयार होते ही काश्तकार
खुशी से झूम उठते हैं। मजीद जानते हैं चिश्तियां से अपने नुमाइंदे मोहम्मद जमील फरीदी से। जी जमील फरीदी, स्ट्रॉबेरी के हवाले से बताइएगा, इस वक्त कितने एकड़ पर स्ट्रॉबेरी काश्त की गई है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिश्तियाँ के नवाही इलाका स्ट्रॉबेरी के खेत में, जहाँ पे अगर बात की जाए स्ट्रॉबेरी के हवाले से तो स्ट्रॉबेरी के हवाले से चिश्तियाँ एक नुमाया मकाम रखता है। इस हवाले से हम स्ट्रॉबेरी जो है वो फ़वाइद के हवाले से अगर जाना जाए तो स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी, बी और पानी की मकदार भी वाफर मकदार में पाई जाती है। इस हवाले से मेरे साथ काश्तकार मौजूद हैं, आइए इस हवाले से बात करते हैं उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा, पिछले साल जो है वो कितनी काश्त की थी आपने स्ट्रॉबेरी, इस साल कितनी की है? पिछले साल जी 3 एकड़ थी, इसकी 2.25 एकड़ है। अच्छा, आप समझते हैं कि ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है? ये जी बिल्कुल मुनाफे वाला जी, हर बंदा ही मुनाफे वास्ते ही इस कारोबार ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ बढ़ाया ਜਾਵੇ? आने वाले वक्त से तो ये सानू आसानी हो जासी भी ऐसकी 2.5 एकड़ है ते अंदर ही 4। जी बिल्कुल, आपने सुना, ये थे काश्तकार जो कि स्ट्रॉबेरी के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे और इनका यकीन था कि अगर कोई बंदा जो है वो स्ट्रॉबेरी की फसल को काश्त करे तो अल्लाह पाक उसमें जो रिज़्क वाफर मकदार में देता है। जी साल साड़ी स्ट्रॉबेरी विकदी रही है 4 तो 450 रुपये किलो तक, ऐसी 3 तो 350 रुपये तक विक रही है। तो ਐਤਕੀ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300-350 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੀਜੀ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਏਕੜ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ 6 ਏਕੜ ਬੀਜੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੋਜੀ ਦੇਗਾ ਮਾਲਕ। ਐਤਕੀ महीना लेट है। फोर्ट अब्बास में चोलिस्तान जीप रैली का इनेकाद। जीप रैली का शेड्यूल जारी कर दिया गया। लाखों की तादाद में शायकीन इस जीप रैली को देखने के लिए किला जामगढ़ पहुंच गए हैं। सहराए चोलिस्तान में धूल चटाती और फराटे भरती हुई गाड़ियां शायकीन की तवज्जो का मरकज बनेंगी। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए